चलो एक बार पहले वो आप सबको सुना दो, देन वी शुड स्टार्ट. Right, sir. It's a structured case discussion. HIV in pregnancy. This task is structured in which applied clinical knowledge, patient safety, information gathering is assessed. You are working as consultant gynecologist at a tertiary care hospital where you see a patient, Mrs. ABC, who is 28 years old, Gravida 2 Para 1, with a gestational amenorrhea of 9 weeks. She was advised for her baseline investigations at 7 weeks of gestation, and now she has reported back to you with her report of fourth generation laboratory assay test for HIV antibody and P24 antigen that is noticed to be positive. She belongs to lower socioeconomic status and concerned of her health and baby's health. The examiner will have a discussion with you based on 5 questions. You have 10 minutes in which you have to answer the questions asked by the examiner. Yes, sir. Hello. हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर का डिस्कनेक्ट हुआ. जी जी जी, ठीक है. मुझे बीच में आपकी आवाज सारी कट गई थी. कैन वी स्टार्ट ओवर अगेन? तो बीच में खाली नेट का इशू आ रहा है हमारा, काइंड ऑफ. जी सर. शुड वी स्टार्ट अगेन? दोबारा से बेटर स्टार्ट कर. राइट सर. सर लेट मी सर्च इट. जी. This task is a structured case discussion which will cover applied clinical knowledge, patient safety, information gathering. You are working as consultant gynecologist at a tertiary care hospital where you see a patient, Mrs. ABC, who is 28 years old, Gravida 2 Para 1, with a gestational amenorrhea of 9 weeks. She was advised for her baseline investigations at 7 weeks of gestation, and now she has reported back to you and with her report of fourth generation laboratory assay test for HIV antibody and P24 antigen that is noticed to be positive. She belongs to lower socioeconomic status and concerned for her health and baby's health. The examiner will have a discussion with you based on 5 questions. You have 10 minutes in which you have to answer the questions asked by the examiner. Okay. So shall we start? Yes, sir. Sure. Assalamu alaikum. So the first is Walaikum Assalam. Sir, चलो should बेटा, I have you start left or? read the scenario? Yes, sir. नहीं. So I My have to name is. ask you questions ताकि you have question. Yes, sir. जी. My name is Dr. Saima. I have read the scenario and I'm ready for structured discussion. Okay. Describe which ethical issues you will consider while dealing with this patient. Sorry, sir, आपकी आवाज कट गई. Describe which ethical issues you will consider while dealing with this patient. Ethical issues. Number one is the confidentiality of our matter and partner notification and Okay. Sexual transmitted infections screening and to know about number of sexual Okay. partners and Okay. then I will ask her a few questions regarding. What about the test? Sorry, sir.
नहीं, you continue better. सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, सॉरी सर, मुझे नहीं समझ आ रही। सर शुड आई कंटिन्यू? Okay, अब आगे बस। जी जी सर, अब आ हाँ, रही you है। continue. Better continue. जी। I will explore the cause through which she was exposed to HIV, like any needle stick injury, any piercing, tattooing, or blood transfusion, and multiple sexual partners, and whether her partner is notified or not. And then बेटा my question, Dr. Simon, my question was, again, I'm going to repeat it. Okay, ethical issues you will consider while dealing with this patient. जिसमें आपने मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी का बताया twice, two things, sorry. उसके अलावा you have something else, or should we move on? so number one is confidentiality, and second is to know multiple sexual partners, I guess, and sexually transmitted infections. Any, I don't know, sir, about anything else. Okay, STS. Okay. Describe how will you approach to the antenatal care of this patient who is now HIV positive. Yes, sir. First, I will repeat the HIV test again to confirm that she is. It's not a mistake anywhere regarding laboratory or something else. And then I will start my patient. I will start managing my patient with counseling and making a plan and reassuring her that it can be treated, and vertical transmission is low if she is compliant to the medicine, like less than 2%. And then I will make sure a plan, and in which I will involve multidisciplinary team involving senior obstetrician, physician, infectious disease physician, and this psychologist. I will evaluate my patient on the basis of psychological, a few questions regarding psychological evaluation, in which I will ask her about whether she is feeling any low, or then I will ask her about folic acid intake, and and any nausea, vomiting, and any urinary complaint, or any lower abdominal pain, or frequent infections she faces. And then I will advise her few after exploring her all history, in which I will take her detailed past obstetrical history. I will ask past mode of delivery, last child born, and whether the baby screened for HIV or not. And then I will ask her about whether she uses any contraception or not, this pregnancy was planned or unplanned, and pap smear was ever taken or not. If it was taken, then I need to check it. And then I want to know her any past significant medical history, including hypertension, diabetes, ischemic heart disease, TB, asthma, or any surgical history, whether she is taking any drug regarding any infection or anything else, like folic acid or not, and any allergy to the any drug or anything, like there is there any sort of addiction, smoking, alcohol, and whether the partner is sportive or not. Then I will proceed for examination, in which I will do her general physical examination. I will do her BMI, I will examine her pallor, jaundice, cyanosis, thyroid, and oral thrush, specifically as the patient is HIV positive. And I will auscultate her chest, and then I will examine her legs, and I will do abdominal examination,
to rule out any visceromegaly or any palpable mass. And then I will counsel my patient for the for investigations which I need to have it at this time. I will test her for the basic baseline health investigations, including blood group and Rh factor, her complete blood count, her timed blood sugar, hepatitis B surface antigen, anti-HCV, and urine complete examination for microscopy and biochemistry. And then I will go for specific investigations in which I will check her LFTs, RFTs, HIV viral load, CD4 count, testing for syphilis, and obstetrical scan for viability and number of gestations. Though my patient is at low risk of aneuploidy, she is 28 years old, but even I advise her for screening for aneuploidy. And in HIV, PAP-A and nickel translucency is advised. And at 13 weeks, I will advise for aneuploidy scan. And then I will counsel my patient to have safe sex, use condoms, and I will involve and depending upon the viral load, I will start her on cart in liaison with HIV physician. I will counsel my patient for frequent antenatal visit and to be compliant to her drugs. And I will monitor her LFTs, urine complete examination on each visit. And so, should I continue? आपकी मर्जी बेटा. Yes, sir. And then I will Do you on frequent think visits, this, and I will जी sorry sir. सर मैं इसको एंड तक ले जाऊं, इसको कॉन्ट्रासेप्शन तक. continue. Yes sir. Then I will advise my patient बेटा आपके पास 1 minute है, जो मर्जी करो. detailed anomaly scan and screening for GDM at 24 weeks. And I will start her obstetrical abdominal examination from 24 weeks onwards. And on each visit, I will do her general physical examination, ask any subjective complaint, and I will do sir, I will do vaccination for pneumocystic. I will I will do vaccination for pneumonia, flu, and hepatitis B. And then on each visit, I will check her fetal heart rate. चलो बेटा And टाइम बेटा टाइम खत्म हो गया. Done with time. क्या हो गया है? मंगवाइए ना दवाई. सर ये कोई और बोल रहा है, सर मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है. How do you know? Do you think ये okay. चलो बीच में से आवाज आ रही थी, अब Yes, तो sir. ये रुकी. अब आपको जी आवाज आ सर. रही? सर 36 वीक्स पे मैं आई विल प्लान फॉर द मोड ऑफ एंड टाइम ऑफ टाइम डिलीवरी. खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया. हौसला हौसला हौसला. You Sorry finish sir. with the time. So how do you think you did? So first question was unexpected, so I was confused. It took lots of time. Sorry. Okay. And what about the second question? Second question was about the management, antenatal management of my patient, and I started from there. And it's a long management according to HIV, so it took long. I should be compiled it in a better way. All right. Do you know how many questions were there? You asked only 2 questions, sir. First was ethical concern, and the second one was how you will take this patient antenatally. Okay. Okay. जो बाकी हमारे क्वेश्चन रह गए थे, मैं पहले जस्ट वैसे और माय सेक मैं आपको just want to
inform you कि एक था, third question was what can be possible maternal and fetal side effect of antiviral therapy. अगला था what should be the mode of delivery in this patient to reduce the risk of fetal-maternal HIV transmission. And आखिरी था what is the evidence for breastfeeding in this HIV positive patient. So should I answer now? So no, अभी नहीं. I'm sure कि आपको शायद इनकी आंसर्स भी पता हो, लेकिन जो तो बेसिकली व्हाट यू डन इज कि आपने 5 में से 2 क्वेश्चंस के जवाब दिए, और अगर उनमें से भी यू कैन वेल इमेजिन कि अगर उसमें से भी अगर आपको मैं पूरे नंबर भी दे दूं तो टोटल स्टेशन जो बाकी आपके नंबर्स हैं वो तो पूरे नहीं होंगे. लेट्स सपोज अगर हमारा 10 नंबर है तो एथिकल इश्यूज के मे बी वी कैन पुट इट 1 और 2 उसके लग जाएंगे नंबर. और जो आपने दूसरा वाला मैनेजमेंट के लिए जो मैंने सवाल पूछा था इसका या इसकी रिव्यू के लिए पूछा था, उसमें आपके मे बी अगर वो 3 नंबर का हो तो उसमें से भी आपको लेट्स सपोज अगर अब 2 भी मिल जाए तो आपका टोटल नंबर आउट ऑफ 10 3 बनता है मैक्सिमम, अगर मैं दिल खोल के नंबर दे दूँ आप. और 3 वाला तो आई डोंट थिंक सो पासेस इन योर ये टोक स्टेशन. इज दैट राइट? Yes, sir. सो बात ये, और ये नहीं कि आपको अगले सवालों के जवाब नहीं आते थे. इसमें जो आपकी प्रॉब्लम जो आपकी हुई विच आई सपोज वाज दैट कि जो हम बार बार कहते हैं कि जी यू नीड टू बी स्टेइंग फोकस्ड ऑन योर स्टेशन एंड द प्रॉब्लम्स व्हिच यू वर गिवन. यू वर गिवन एन इशू ऑफ अ पेशेंट जो ग्रेविडा 2 पैरा 1 थी, 28 ईयर्स ऑफ एज थी, और उसका एक टेस्ट फर्स्ट टाइम HIV पॉजिटिव आया था. इज दैट सो? Yes, sir. सो इसमें एथिकल इश्यूज अगर आप जाएं, यू कवर्ड देम वेल. उसमें आपका कोई ऐसा नहीं कहा था. आपने कहा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी कि जी पहले तो नंबर 1 उससे हम विल मेक श्योर कि जी ये है, एंड बिफोर वी गो इनटू दैट कोई भी HIV की रिपोर्ट हैज टू बी रिकन्फर्म, जो आपने अभी नहीं, आपने सेकंड फेज में की, पर एथिकली पहले उसको आप रिकन्फर्म जरूर करो Yes, जो sir. आपके एथिकल इश्यूज आते हैं. ठीक है? जी sir. उसके बाद बिकम्स पॉजिटिव, फिर हम उसकी आगे अपने कॉन्फिडेंशियली उसके पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन वो आप जरूर लोगे, और अगर जी जरूरत sir. है तो अगर देते हैं तो फिर पार्टनर की, और जो प्रीवियस इनका बेबी है जिसकी आपने नहीं पूछा कि वो बच्चा जिंदा है क्या है, लाइव है कि क्या हुआ था और उसकी मोड ऑफ डिलीवरी क्या हुई थी, उसके हिसाब से देन यू विल आल्सो अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम स्क्रीन करेंगे. ठीक. सर स्क्रीन का वी कहा था, विल मैंने एट मोड ऑफ दिस. डिलीवरी भूल गई. ओके, मैंने स्क्रीन लिखी नहीं, लेकिन चलो आपने कहा तो चलो दैट्स ओके. तो बेसिकली दिस स्टेशन वुड बी कि हम इसको सॉरी बेटा एक सेकंड, आई नीड टू टेक दिस कॉल. मैं आपको एक सेकंड. जी सर. सॉरी. सो जी हमारे जो हाँ एथिकल इश्यूज में हमने सिर्फ रिकन्फर्म करना है उसका, वो भी इस स्टेज के ऊपर वी डोंट हैव टू गो इन टू आइडेंटिफाई के हाउ डिड शी गॉट दिस इन्फेक्शन. अभी तो हमने पहले उसको काइंड ऑफ देना है जिसमें आपने कहा कि हस्बैंड की
बच्चों की स्क्रीनिंग, और आपने उसको जिस तरह वो इजाज़त देगी उसके हिसाब से देन विल काइंड ऑफ मूव। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात थी, सवाल था, डिस्क्राइब हाउ विल यू अप्रोच टू द एंटीनेटल केयर टू दिस पेशेंट हु इज HIV पॉजिटिव। दैट मीन्स कि अब वो कंफर्म होगी कि वो HIV पॉजिटिव है, हाउ शुड यू गो अबाउट। उसमें यू स्टार्टेड वेल विद दिस सेइंग कि जी हम एक MDT बना लेंगे जिसके अंदर ये सारे लोग होंगे एंड विल डू दैट। अब उसमें यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, जो एक रूटीन की हम एंटीनेटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू अ पेशेंट जो काइंड ऑफ एक हाई रिस्क आता है। शी वॉज और जिसमें आके सॉरी, हाँ, जिसमें आके आपने जो उसकी HIV वाला स्टेटस था उसमें ज़्यादा आपने फोकस नहीं किया। अब ये वाला जो पेशेंट है जिसमें बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह आ जाती हैं और आपके एंटीनेटल विजिट्स अगर रूटीन के हैं तो वो सही चले जाते हैं। पर वन थिंग इज कि अगर हमने जो सवाल कि हमने इसको HRT स्टार्ट करनी है, सॉरी अपना हार्ट स्टार्ट करना है, या हमने इसको अपना स्टार्ट की मेडिकेशन स्टार्ट करनी है, या आपने एंटीवायरल ड्रग स्टार्ट करनी है, तो वो हमने कब करनी है, कब आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से कब चलेंगे। एंड उस पर डिपेंड करता है, आपने जिक्र किया उसका, जिसमें उसके वायरल रोल का और CD4 का रोल आ जाता है। अगर वो रोल हमने अभी नो कीजिए, उसका लोड हमने तक रखना है या उसको किस तरह मिनिमाइज करना है, और दैट शुड हैव बीन द फोकस ऑफ दिस। आपने बाकी हर चीज उसकी तकरीबन कर दी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वी काइंड ऑफ फोकस ऑन दिस। एंड ऑफ कोर्स इन्फेक्शंस, STIs, उनकी स्क्रीनिंग, और उसके अलावा अगर उसको कोई इन्फेक्शन होती है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, उसमें भी हम उसको क्या कहते हैं वो करेंगे। और उसके अलावा आपने वैक्सीनेशन कराई, दैट वाज अ गुड पार्ट, जिसमें इसमें सॉरी स्क्रीनिंग जो है उसकी सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, C, रुबेला उसकी होगी। और उसमें अगर आप करना चाहो तो वो जो एडिशनल टेस्ट होते हैं उसमें ये इसका हर्पीस का, वेरिसेला जोस्टर का, मीजल्स, टॉक्सोप्लाज्मोसिस का भी होता। उसकी अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, सॉरी, तो देन वी विल आल्सो डू दैट। फिर उसके जी बाद सर। हमने उसकी एंटीवायरल थेरेपी कब स्टार्ट करनी है, कितनों पे स्टार्ट करनी है, कि CD4 काउंट कितना होगा या उसका अपना वायरल लोड कितना होगा, उसके ऊपर देन विल सी। एंड वी ऑल नो कि उसको उन्होंने डिवाइड किस तरह किया हुआ है। सर उसमें उनकी रेंजेस भी दी हुई हैं डिफरेंट, आई एम श्योर कि आपको पता हो, सर वो नहीं, बताऊं। लेकिन दीज वर द, बताओ। Sir, if the viral load is more than 100,000 and CD4 count is less than 200, then we will have to start it from the first trimester. Otherwise, if Okay. the viral load is between 30,000 to 100,000, we will start it from the second trimester, but early second trimester. If the viral load is less than 30,000, then we will start it not later than 24 weeks. ठीक, दैट इज फाइन। और उसमें हमने स्टार्ट क्या करना? So we have a combination of medicines in which we give nucleotide reverse transcriptase inhibitor, non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor, protease inhibitor, integrase inhibitors, and we give two medicines out of nucleotide reverse transcriptase inhibitor and one out of the other three drugs. And most likely we start nevirapine, zidovudine, lamivudine, and raltegravir in a BD dosage. ओके। और इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? Sir, hepatotoxicity, renal toxicity, and I'm talking about CARD, hepatotoxicity, renal toxicity, and GDM or diabetes mellitus if out of the pregnancy. And if the patient is on zidovudine, then there is chances of mild anemia. ओके, फाइन। एंड व्हाट अबाउट डायबिटीज स्क्रीनिंग? Sir, I advise my patient at 24 weeks for OGTT. ओके, वो तो रूटीन की करते हैं ना बेटा। व्हाट अबाउट इन दिस केस, व्हाई आई एम आस्किंग यू डायबिटीज की स्क्रीनिंग इफ शी इज स्पेसिफिकली ऑन? On CART.
Sir, first I screened at 24 weeks, then I will screen at 32, and later at 36 if previously she Yes. was negative. According to SOGP in Okay. each trimester, sir. Okay. And what should be the mode of delivery in this patient? Sir, mode of delivery, I will decide at 36 weeks after doing her viral load and her CD4 count, and involving the MDT, and in which if the viral load is less than 50, then I will go for vaginal delivery. And if it is if it is 50 to 399 or less than 400, then I will I will consider pre-labor cesarean section at 38 to 39 weeks. And if it is more than 400, then I will advise her planned cesarean section at 38 weeks. Okay, good, shabash. Um, so question आया था, चलो अभी निकल के बाद में आ जाए, sorry. And what about breastfeeding in this HIV positive patient? Sir, about breastfeeding, I will counsel my patient that if it again depends on her viral load. If it is less than 50 and patient wants to do breastfeed, I can allow her, and but I advise some specific DNA monitoring, viral load monitoring during the time period she breastfeeds. I advise her not more than 6 months to breastfeed, and she should avoid breastfeeding while she's having any gastrointestinal symptoms, she or her baby. Then she should stop it. And in each month, every month, she have to get her viral load measurement. And after stopping breastfeeding, 2 more months, she have to check her viral load. And Okay. अच्छा, if आप इस viral load सारे is में more, एक उसमें there is 20 to 40% risk of, sorry sir, 20 to 40% risk of vertical transmission if her viral load is more than 50 and she is not on card, or any abrasion or any mastitis. ओके. अच्छा, मुझे आप ये बताओ, इसकी इस सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन भी इसकी थी पेशेंट के बारे में, इसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस. Yes sir, she was उससे क्या poor sir. इम्पैक्ट पड़ता है? She was poor. Actually sir, फिर formula आप feed is उसका expensive. what impact? सर Yes, आपकी शाबाश. आवाज कट रही है, सॉरी. And so is the test. जानना चाहोगे वो are they cheap? No sir, it's not cheap. हाँ, तो फिर then you have to discuss that with the patient as well. फिर उसमें वो ऐड कर दो आप. बाकी तो आई थिंक ठीक है. Yes sir. अब बात ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ तो आपको आता था, लेकिन इसके नंबर आपको नहीं मिल सकते. उसकी रीजन बिकॉज वी वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम ऑन आवर सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस आंसर्स. तो एट एन एवरेज जब ये टॉक सेशन बनते हैं, the questions they are between 4 and 5 for every station जो एग्जामिनर ने पूछने होते हैं. और 4 5 में से अगर आपने सिर्फ 2 के जवाब दे दोगे, बाकियों के नहीं दोगे, चाहे वो आपको आता है या नहीं आता है, तो चांसेस फॉर यू टू पास काफी कम हो जाते हैं. So how to इज compile? I दैट tried my ओके best. और नॉट? Yes, you are और right, उसमें sir. अगर But आप नहीं देखो ना, इसमें यू ट्राई टू और अब, लेकिन यू डिड नॉट रिमेन फोकस्ड ऑन HIV. आप एक जनरल उसकी सारी एंटीनेटल कार्ड में इवन गोइंग टू उसका अपने सर्वाइकल स्मेयर भी कर लिया. दिस इज yes, sir. फाइन. मैं वो नहीं कर रही. जब हमारा लॉन्ग केस होता था, जब इसमें आप मिलते तो दैट फाइन. 30 मिनट्स में यू कैन नॉट गो लेफ्ट एंड राइट.
You need to remain focused because जी बाकी रूटीन एंड केयर ऑफ एन हाई प्रेगनेंसी के हिसाब से करेंगे, उसके वीकेंड फ्रीक्वेंट अपना सॉरी जो वी आर काइंड ऑफ फोकस, क्योंकि इसमें हमने ये डिसीजन लेना है इस किस्म के पेशेंट में इधर फ्रॉम मुझसे माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि हमने उसकी वायरल लोड के हिसाब से उसकी मेडिकेशन हमने स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी है, और करनी है तो कब करनी, एंड हाउ टू फॉलो दोज अप। और उसको अगर आप कवर कर लोगे फिर बाकी और ज़ाहिर है उसके हिसाब से बाकी अगले 2-3 सवाल उसी के हिसाब से फिर आपके वो आ जाते हैं, दैट कम्स आउट। और वो एथिकल इश्यूज आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी परेशानी वाली बात है उसमें। वन ऑफ कोर्स इज योर कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा पार्टनर की स्क्रीनिंग, बेबी की स्क्रीनिंग, एंड तीसरा की जी के जो उसके बाकी अपना क्या कहते हैं उसको, आई एम सॉरी, STIs, उनके लिए उनको रूल आउट करके देखने के बाद उसको एक्सप्लेन करना है। और उसमें जो आपने टीम जो बनाई थी उसमें एक आप सिर्फ भूल गए, जो पीडियाट्रिशियन था वो आपने शामिल नहीं किया। आई थिंक पीडियाट्रिशियन शुड आल्सो बी इन्वॉल्व ताकि वो बता सकें कि बेबी के लिए जब पैदा होगा उसके बाद हम क्या करें। Sir, I plan to include in अगेंस्ट को MDD at 36 weeks. यस, यस ऑफ कोर्स, जब आपने उसको डिलीवर करना है उसके बाद की जी हम वो करेंगे, और उसी टाइम पर उसकी वी कैन ऑलवेज डिसाइड अपॉन कि हमने उसकी क्या कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हमारा क्या प्लान है और हाउ टू यूज इट। एंड एक बात ऑफ कोर्स, थोड़ा सा जो अब आपका अपना लोकल स्टाफ जिसने इसको हैंडल करना है और उसकी प्रिकॉशंस जो हैं वो भी हमें पता होगा, लेबर रूम के अंदर भी और आफ्टर जहाँ पे उसकी डिलीवरी हो रही है या उसका क्या कहते हैं सेक्शन होना है, और उसके बाद उनकी केयर और उस बाकी सब चीज़ों की जो भी व्हाट यू से हमारा स्टरलाइजेशन का उनके प्रोटोकॉल्स शुड बी फॉलोड। उसकी डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने सिर्फ ये कहना है कि जिनके स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल शुड बी रीअसेस्ड एंड उसको मेक श्योर कि दे आर फॉलो, ताकि मिनिमम ट्रांसमिशन टू एवरीबडी अराउंड हो। एंड ऑफ कोर्स उसके Sir, आवाज नहीं आ रही। वहाँ पे आप ना बता सको बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम, और इस एग्जाम में है ही प्रॉब्लम सिर्फ टाइम की मैनेजमेंट, और टाइम की मैनेजमेंट आपकी विद प्रैक्टिस एंड विद रिमेइंग विद फोकस थिंग्स के आपने साथ करके आपने मिनिमम लेफ्ट राइट होना है, यू नीड टू रिमेन फोकस ऑन के टारगेट के हिसाब से करोगे तो वही आपका 10 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। जी आपको सर। बड़ी एक एक्चुअली जो पहला सवाल था इट काइंड ऑफ गिव यू अवे कि जी एथिकल इशू एकदम कहाँ से आ गए, लेकिन वो आपको आते थे, एंड इट्स नॉट दैट कि वी डोंट डील विद दीज एथिकल इश्यूज। हाँ, हम उसको इतना हाईलाइट नहीं करते लेकिन करते तो हैं, देखते तो हैं। हम ये नहीं जाहिर करते कि HIV पॉजिटिव पेशेंट आ जाता तो सारे शहर में ढूंढ रहा है वो HIV आ गया, HIV आ गया, HIV आ गया। तो यस ऑफ सर कोर्स सारी चीजें करने की बात कर जी। सर क्या आप दोबारा से बताएंगे कि क्या एथिकल इश्यूज को कैसे वो क्या आंसर किया आपने? बेटा उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको हमने अपनी उसमें देना है। एक, नंबर 1, कंफर्मेशन ऑफ द टेस्ट, और कई बार वो ये भी जो इनकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है उन्होंने कहा जी आप 2 डिफरेंट लेबोरेटरी से उसको रिकन्फर्म करोगे। शी इज़ वन ऑफ दोज पेशेंट्स जो अभी इमरजेंसी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, तो यू हैव टाइम फॉरन बिफोर ब्रेकिंग एनीथिंग एल्स वो करके आपने पहले कंफर्म कर लिया। लेट्स सपोज कि अगर वो कंफर्म हो जाती है कि हाँ जी शी इज़ HIV पॉजिटिव, फिर आ जाती है बात ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, पार्टनर्स, उसके जो बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग, एंड बाकी जो इन्फेक्शंस हैं उनकी स्क्रीनिंग, एंड आगे उनको लेके क्या करना। शी वांट्स टू डिस्क्लोज दिस थिंग टू हर पार्टनर्स या अपने हस्बैंड और बाकी फैमिली को, तो दैट इज हर राइट। अगर वो नहीं करना चाहती तो फिर हम उसको कैसे लेके चलेंगे कि आगे हमने आगे किस तरह लेके जाना। ये 3-4 इसके काइंड ऑफ एथिकल इश्यूज। एक्सक्यूज मी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये क्वेश्चंस जो हमें दिए होते हैं ये मतलब पहले से वहाँ पे हमें पता होंगे कि क्या क्वेश्चंस है। फॉर नो, एग्जांपल ये एंटीनेटल केयर जो है इसके बाद का क्वेश्चन मोड ऑफ डिलीवरी है, तो एंटीनेटल केयर में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता हो कि अगला क्वेश्चन मोड ऑफ डिलीवरी है तो फिर तो हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे।
बेटा तो देखो, हमें नहीं, अगर आप मॉडल डिलीवरी का उसमें अपने मैनेजमेंट के अंदर बता दोगे साथ साथ, तो आपको उसके नंबर भी मिल जाएंगे। तो सर उससे फिर टाइम क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगा। नहीं, पर देखो, जब आपकी मैनेजमेंट आ जाती है ऑफ एन एचआईवी पेशेंट्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो ऑफ जी कोर्स एग्जामिनर वुड या वी वुड लाइक कि हम उसको एंड तक उसकी डिस्कशन होगी ऑफ मॉडल डिलीवरी भी, उसकी डिस्कशन जो एंड होनी चाहिए वो इसकी होनी चाहिए फॉर दिस अपना व्हाट यू कॉल दैट ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉन्ट्रसेप्शन फ्यूचर के लिए। अस्सलाम वालेकुम इंटरमीडिएट में सर। हम अस्सलाम कॉन्ट्रसेप्शन वालेकुम तक सर। जाएंगे मतलब। क्वेश्चन है सर। हाँ जी, सर हम इन्फेक्शन टीम को भी इन्वॉल्व करेंगे अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट मतलब अगर आपके एमडीटी पास में कि नहीं? अवेलेबिलिटी आज का आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप इन्फेक्शियस डिजीज वाले को जरूर करोगे, क्योंकि वो आपको प्रोटोकॉल्स ऑफ बाकी सारी चीजों की और वो स्टरलाइजेशन सेट करके देंगे ना हमें? वो करते हैं, हाँ वो करके देंगे, इसलिए यू 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 विल मतलब ये इन्वॉल्व। हमें मेंशन अगर करना, मतलब अगर सॉरी, अवेलेबिलिटी है या नहीं हम मेंशन कर दें एग्जामिनर के यस, सामने एमडीटी में। ये क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये एग्जाम जो है ये तो आपने एक उस एनवायरनमेंट में देना है जहाँ पे आप जब भी बात करोगे तो वो कहेंगे हाँ जी हर चीज़ अवेलेबल है। यस। सो जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है तो वहाँ पे देन यू हैव टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी, यहाँ पे जो जो आपके फैसिलिटी है उसको हमने कैसे मेंटेन थैंक यू सर। कर। चलो, इसमें और कोई क्वेश्चन है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अगर हमारे पास यही सर ये 9 वीक का पेशेंट आ जाए जो HIV रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ आ जाए, तो पहले तो जी, हम उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और रिजल्ट को मतलब कंफर्म करने के बाद उससे पूरा एंटीनेटल प्लान डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसको मोड ऑफ डिलीवरी तक लेके जाएंगे। यस, आइडली यस। पर जो आपने उसकी डिलीवरी का जो उससे डिस्कशन करना है वो स्पेसिफिकली फॉर हर केस कि आपके एंटीनेटल विजिट थोड़ा फ्रीक्वेंट होंगे, आपकी टेस्टिंग थोड़ी सी फ्रीक्वेंट होगी, और आपके ब्लड वर्क के हिसाब से देन वी विल डिसाइड कि हमने कौन सी मेडिकेशन आपको देनी है कि नहीं। ठीक है जी, और ब्लड वर्क थैंक से यू वो सर। डिटेल पूछेंगे तो फिर देन ऑफ कोर्स यू विल से द वायरल लोड एंड द CD4 सेल्स, ओके, थैंक हिसाब से यू। देन विल डिसाइड। और उसी पे देन ऑफ कोर्स द सीन इज मेड ऑफ की जो डिलीवरी कैसे होनी है, और द सीन इज आल्सो मेड ऑफ आगे ब्रेस्ट फीडिंग क्या करनी है। ठीक है जी, यानी कॉन्ट्रसेप्शन तक हमने इसको लेके जाना है। आइडली, आइडली यस। ओके जी। सर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट्स अपने पेशेंट में देखेंगे एचआईवी की ना, जैसे हमें कहेंगे कि एग्जामिनेशन करें इस पेशेंट की, तो हम जनरल आपने फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ कौन सी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होगी हमारी? जो HIV वाला पेशेंट है उसमें आप क्या चीज आइडेंटिफाई करना चाहते हो? एक तो रूटीन का आपका एंटीनेटल हो गया ना, कि लेट्स सपोज आपने उसकी फंडल हाइट सारा कुछ जो ऑब्स्टेट्रिक्स आप करते हो वो करोगे। इनमें जो स्पेसिफिकली आपने देखना है, आपने इन्फेक्शंस को रूल आउट करना है, आपने कोई और इस तरह की चीज ऐड किया करते हो ताकि उनको आप ट्रीट अर्ली कर सको। और ऑफ Oral कोर्स sir. सॉरी, और अगर वो किसी एंटीवायरल ड्रग्स पे हैं तो उनकी साइड इफेक्ट्स को यू नीड टू आइडेंटिफाई। ये तीन बेसिकली इसके जो ये सिनारियो है इसके अंदर आई कीप माय फोकस ऑन एग्जामिनेशन ऑन दीस काइंड ऑफ थिंग्स। उसके वार्ड्स आ ऑलराइट जाते सर। हैं या उसकी हर्पीज आ जाती है कोई, उसको आपने लुकआउट करके उसको मैनेज पहले कर। वालेकुम सर। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि काउंसिल करेंगे पेशेंट को रिगार्डिंग डिलीवरी एंड ऑल बेटा, दैट। थोड़ा ऊंचा बोलोगे आप? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। ये है कि जिस तरह ये काउंसलिंग की बात हो रही थी कि पेशेंट को काउंसिल करेंगे रिगार्डिंग डिलीवरी एंड एंटीनेटल केयर, तो सर जी उसमें ये पेशेंट इतने वेल एजुकेटेड बाजुकात नहीं होते और उनको फिर ये CD4 काउंट और वायरल लोड का बताना, ये उनको मतलब लाइक किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये नहीं, देखो उसमें कि मतलब हमने आपको पेशेंट क्या को। मेडिकेशन स्टार्ट करनी है, कब करनी है और कौन सी करनी है विल डिपेंड अपॉन योर ब्लड वर्क। आपके ब्लड के हम टेस्ट कराएंगे, उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद फिर हम फैसला करेंगे आपको कौन सी दवाई कब और किस तरह देनी। ये तो हो गया एक ठीक। आपका जो आपके पास हॉस्पिटल के अंदर या आपके पास क्लिनिक में मरीज आता है जो यू थिंक इज नॉट दैट एजुकेटेड, ये तो बात उसे समझ आ जाएगी। जी जी जी। वो टेस्ट कितने फ्रीक्वेंटली होने हैं वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन ये ओके। एग्जाम क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरेक्शन बिटवीन एग्जामिनर एंड यू है, तो उसमें आपने दिस इज नॉट अ रोल प्ले केस।
Okay, sir. This is a discussion between examiner and you, and that will probably would be in English, and उसके हिसाब से then you Okay, can sir. answer. उसमें Okay, क्या sir. मुश्किल है? Okay, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। मुझे मेडिकेशन का पूछना था कि वो बता दीजिए कि वो कौन सी देनी है सर। इसमें जो इसकी है गाइडलाइंस में बड़ा कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है उसमें क्या कि बेटा, उसमें तो बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है कि आपका ये चीज इतनी होगी तो आपने ये वाली मेडिसिन स्टार्ट करनी, ये वाली इतनी होगी तो आपने इतनी स्टार्ट करनी। सर ये तो ये लिखा वाली हुआ जो है मैंने ये वाला सॉरी ये वाला जो मैंने स्टेशन जो उसका निकाल के बनाया था, ये तो सिंपल उसका जो आपकी HIV की गाइडलाइंस है उसी में से निकला हुआ है। आप कहोगे तो मैं वो गाइडलाइंस जो है इसे मैं इमरान से शेयर कर लेता हूँ, वो आपसे आगे उसको देख लेंगे, जस्ट गो थ्रू देम, एंड ये तो ऐसे भी अवेलेबल हैं। यस प्लीज सर, ये गाइडलाइन शेयर कर दें प्लीज सर। प्लीज गाइडलाइन शेयर कर दे जी सर। सर कर दें। हौसला हौसला बेटा, मेरा ख्याल है ये मेरे पास होनी चाहिए। आई थिंक सर और ये जो डोल्टी ग्रेवल जो मेडिसिन है सर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, वो नहीं देते हैं क्या? हाँ जी, नहीं देते, ये तो मेरा लिखा ख्याल हुआ है, है। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग द फर्स्ट 13 वीक्स। ये सर वो नहीं देते, गाइडलाइन में मेंशन है। सर बस मेडिकेशन का इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है क्योंकि वो इतनी ज्यादा है तो वो समझ नहीं आता कौन सी बतानी है और कौन सी नहीं, तो उसका कोई आसान सा बता दें बेटा उसको कि पढ़ लो, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास ये थी तो सही। सर वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट है और वो याद करनी पड़नी है सारी। यस, वो काइंड ऑफ अ रोटा है आपका, रटा लगाना है आपने उसको कि जी ये वाले अगर उसकी वैल्यूज 350 से कम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, और आपका वो जो उन्होंने, वैसे शी टोल्ड वेरी वेल जो हमारी कैंडिडेट थी कि कितने पे हमने क्या क्या करना। ओके, ये मुझे अभी मदीहा ने भेजी है आई थिंक, ये मैं इमरान को भेज रहा हूँ। इमरान विल काइंड ऑफ, इमरान जी सर। ये प्लीज शेयर कर लेना इनसे। जी सर ठीक है। Sir, should I answer the last questions? विच वॉज, Sir, कौन, which I couldn't. नहीं हमने तो बाकी सारे 5 पूरे कर लिए थे बेटा, Right, sir. हमारे तो हो गया था इसमें। सो कॉन्ट्रसेप्शन की हमने बात नहीं की, उसके अलावा तो Sir, आई मैं थिंक बताऊं? बता दो। Sir, जी sir. So in postnatal care, I will evaluate my patient for thromboprophylaxis and for her psychological status to rule out any postnatal depression, and I will advise her contraception in the form of IUCD or Mirena, as CART affects bioavailability of COCPs and POPs. And then I will counsel my patient for annual screening of cervical screening, and revisit after 4 weeks, and again complete evaluation of my patient. I will counsel my patient about breastfeeding and neonatal care. ओके, सिर्फ आप इसमें एक बात भूल गए हो बेटा, जो अगर वो एंटीवायरल थेरेपी भी है वो कब तक चलेगी और उसको फॉलो अप किस तरह करेंगे। आपने तो ड्यूरिंग दिस कर लिया ना, हाँ, सिर्फ आपने वो कर दिया, लेकिन आफ्टर दिस डिलीवरी फिर आपने उनको किसके फिजिशियन के हवाले करना है, या उनको ये इन्फेक्शन डिजीज के बताना है, और देन उसके बाद आके यू कैन काइंड ऑफ। Sir, at 4 week visit, I will refer her patient, my patient to general physician, and according to latest guideline 2020 BHIVA, they say the patient should continue CART throughout her life. ठीक, तो सर ये टोक आर्टिकल HIV के लिए पढ़ेगी, फिर बीवा पर कर ले हम लोग। जो आपको याद आए वो आप पढ़ लो एक बार प्रॉपरली, और उसको हम जब भी आपने फिर उसको पूछे आप कोई ये इन्फॉर्मेशन आपने की है, उसको आप वहां से रेफरेंस उसका दे दो। ओके थैंक यू। वैसे इतना टाइम वहाँ पे होता नहीं, लेकिन यू कैन। जी यही तो बात है सर। हाँ हाँ, एक चीज नहीं ये सबसे बात नहीं है बेटा, इम्पोर्टेंट, उसमें आपने टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है, ये जी कोई और, बिल्कुल। ये कोई और नहीं करेगा। जी बिल्कुल सर। ओके थैंक यू। चलो, जब इमरान स्ट्रक्चर अपना डिस्कस, डॉक्टर शनाज ने लेनी क्लास, आज है डॉक्टर शनाज की क्लास की नहीं? No, sir.
सर आज रात वापस आना है मुझे। नो सर, आज तो नहीं बचे ना सर। अच्छा चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच, आई हैव टू गो। Thank you so Thank you, much, sir. sir. ओके, Thank you so much. Sir, next class में क्या topic होगा? ये तो बेटा मेरा ख्याल है Sir, आपको cardiac disease ट्यूसडे in को कंफर्म pregnancy कर कर रहे दूंगा हैं? सर ट्यूसडे को कंफर्म कर दूंगा मैं। ट्यूसडे को कंफर्म कर देंगे। चलें। Sir, cardiac सर disease वन in थिंग फ्रॉम pregnancy माय कर रहे हैं? साइड प्लीज, आप प्रेजेंटर चेंज कर दे, हमें भी मौका दिया करे प्रेजेंट करने का। मतलब लास्ट 2 लेक्चर से एक ही प्रेजेंटर है। बेटा वो I'm तो not. नहीं, I'm not. आज ये the तो first time. चलो कोई बात नहीं, हो सकता है आपका नाम मिलता हो किसी और से या आवाज मिलती हो, लेकिन दैट इज सीन। तो वो इमरान तो मुझे पता है कि सबको ऑफर करता है कि जी कौन कौन अवेलेबल थी उसमें, देन वी ट्राई टू चूज वन एंड वी ट्राई कि हम सबको बारी बारी मौका जरूर दें। यस सर। ठीक, चलो सर ओके बेटा, मुझे थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. हाफिज। Allah Hafiz. हम देखते हैं बिफोर नेक्स्ट प्रेगनेंसी।